मित्रों, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है जेपीसी की, उसके बारे में हमारे स्टेटमेंट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। The NDA demands of the UPA: A. How and why was A. Raja not permitted to appear before the JPC despite his repeated requests and demands for it from members of the JPC? Second, how have the two principal ministers of the government dealing with the matter, Dr. Manmohan Singh and Sri P. Chidambaram, been exonerated without questioning and without any examination by the JPC? Third, how possibly can a minister of the cabinet mislead the Prime Minister? Fourth, where does the collective responsibility of the government lie? And fifth, who actually has drafted the purported report of the JPC, the chairman or some proxy of the UPA? Mitro, the NDA collectively and with one voice totally condemns the manner in which the JPC draft, as per accounts, is charging former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee and the present convener of the NDA with knowingly having caused losses to the exchequer. This is utterly and absolutely condemnable. Such conclusions in the draft report of the JPC, while simultaneously clearing Dr. Manmohan Singh and Sri Chidambaram through a variety of slates of hand, is an act of unmatched perfidy. It is the parliament, the people, and the country that is betrayed through such acts of dishonesty. The NDA therefore appeals to all the members of the JPC to reject the report in toto. Further, to charge NDA ministers like Sri Arun Shourie and Jaswant Singh, recognized for their unimpeachable integrity of wrongdoing, can only be termed as perverse. They have both, at the initiative of the UPA, been already interrogated by the CBI and no fault found. The NDA calls upon the citizens of India to rise against the accumulated wrongs of the UPA against all their misdeeds and to root them out of office. Friends, मैं मानता हूँ कि इस यूपीए के ड्राफ्ट रिपोर्ट ने जो सरकार के रवैये के बारे में हमको सोचने के लिए मजबूर किया है, वह निश्चित रूप से हम आने वाले सत्र में वो जब भी कभी सहयोग की बात करते हैं कि अमुक बिल पास करना है, ये करना है, तो हमको उस बारे में सोचना पड़ेगा। प्रमुख बात तो अभी हमारे सामने है कि जिसकी चर्चा शायद पहले दिन होगी कि कोलगेट का मामला वह समाप्त नहीं हुआ, उस पर चर्चा भी नहीं हो सकी है और हम चाहेंगे कि पहले ही दिन कोलगेट का इशू उठे और कोलगेट के बारे में जो कुछ भी हमको कहना होगा वो ज़रूर वहाँ पर कहेंगे। आखिर तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को वायलेट करके जिस प्रकार से विधि मंत्री ने और सीबीआई को रिपोर्ट डाइल्यूट करने के लिए कहा, ये बातें ऐसी है। और जिस प्रकार से पत्रकार प्रेस को पहले से ही बता देना, मेंबर्स को पहुंचाने से पहले, लगता है कि जैसे मानो धीरे धीरे करके उनके लिए संसद इररिलेवेंट होती जा रही है और ये एटीट्यूड उनका जो रहेगा उस पर भी शायद पहले ही दिन हम एनडीए की तरफ से सवाल उठाने की दोनों सदनों में कोशिश करें। हम पूरी अपेक्षा करेंगे कि 25 तारीख को जब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जेपीसी विचार करेगी तो केवल एनडीए के सदस्य नहीं लेकिन बाकी सदस्य भी इसका विरोध करेंगे
और उसको पूरी तरह से अस्वीकार करें। मित्रों, इस समय मुझे कुछ और कहना नहीं। मैं समझता हूँ कि आज की इस चर्चा में हमने प्रातःकाल चर्चा की, अभी एनडीए में चर्चा की। हमको लगा कि बाकी विषयों के बारे में जो कुछ कहना होगा वो सदन चलते हुए हम कहेंगे। इस समय इसी पर हम फोकस करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। कौन सा? आज जो हमने अपने स्टेटमेंट में कहा है, इन सभी विषयों को सत्र में उठाएंगे, लेकिन पहले दिन संभव है कि कोलगेट के इशू पर फोकस करेंगे। Will the BJP continue to be in the JPC even after this report has been leaked to the media? That doesn't mean we are going to participate in the 25th meeting also. We will be there and we will oppose it. We have resolved to oppose it, and we have appealed to all members of the JPC to see that this report is rejected. So did you realize earlier that this would meet this JPC committee will meet the same date as PAC? We were told that BJP has come to the conclusion that there is no point in continuing in GPC, and we were even told that we may quit. But I know that there have been times when the manner in which the JPC was being conducted did create all these misgivings in the minds of the JPC members, our BJP members, NDA members. But despite this indication, the party had decided no, we should continue, and we had been continuing. This draft report has shocked us really. We will oppose it. We will oppose it. But we will participate in the meeting of this committee where the report will be considered, because we would like all other members also to oppose it. In the committee, the numbers stacked against Congress are much higher than the pro-Congress numbers. In that case, why do you apprehend that your version of the report will not get carried? Therefore, we are participating. We are conscious of the fact that at least party-wise, the numbers of the opposition are larger. Yes. Therefore, we are going there. अडवाणी जी सर, आपने कहा कि ये जेपीसी की रिपोर्ट क्या चेयरमैन ने लिखा या फिर प्रॉक्सी कोई बाहर का लिखा? इसमें आपने ये भी कहा कि पीएम और चिदम्बरम को बुलाया नहीं गया, उन्हें बख्श दिया गया। आपका इशारा क्या पीएम चिदम्बरम या किसी पर नहीं? हमको तो पता नहीं है कि कैसे लिखी है, क्यों लिखी है, और क्यों सारे पुराने हमारे सहयोगियों के नाम आए हैं। मैंने आपको स्वीकार किया इस बात को कि वो कोई रिपोर्ट स्वीकार कर बहुत अच्छी लिखेंगे ऐसा हम अपेक्षा नहीं करते थे। आखिर तो हमारा अनुभव पहले की जेपीसी का भी है, लेकिन फिर भी जिस समय हमारे ही साथियों ने कहा कि इससे तो हम त्यागपत्र दे दें, तो पार्टी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। यही सोच करके कि धीरे धीरे करके ये क्या करते हैं, रिपोर्ट कैसी बनाते हैं, इसको भी हम देखते हैं। और रिपोर्ट में अगर ये बातें ना होती तो शायद हमारी प्रतिक्रिया इतनी इतनी ज़्यादा आक्रोश की ना होती, हो सकता है। लेकिन जितनी उनकी समझ है, जितनी सूझबूझ है, और जितनी सेंसिबिलिटी उनमें है, और जितनी डिसेंसी उसमें है, उसके अनुरूप ही उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। जिसने भी प्रमोद जी, अडवाणी जी, बीजेपी की ओर से डिसेंट नोट को पेश किया जाएगा क्या? जी, हम तो कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो, इसी की कोशिश करेंगे। सुषमा जी मेरा सवाल अखिलेश जी सर, हाँ जी, ये सवाल थोड़ा सा हटके सर। एनडीए की मीटिंग पहली बार हुई जब सारा विवाद हुआ, जेडीयू की ओर से इतना तीखा हमला किया गया के ऊपर। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं आज इस रिपोर्ट के अलावा और किसी चीज पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हर एक के मन में, पत्रकार रहा हूं मैं, और मैं जानता हूं कि पत्रकार सम्मेलन में कभी जाता था तो मन में पहले से सोच करके आता था मुझे क्या लिखना है, और उसके हिसाब से ही सवाल पूछता था।
तो आप भी शायद सोच करके आए हो। सुषमा जी, मैं आपसे ये राजा जिन पर आरोप है कि 2G घोटाले का आरोप है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जानकारी में सब कुछ हुआ और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तमाम दस्तावेज वहां रखे जाए। क्या आप लोग चाहिए कि संसद में कम से कम इस बात का भरोसा प्रधानमंत्री दिलाएं कि आपके खिलाफ जो आरोप है वो भी सुन लिए जाए? अगर उन पर आरोप है, जेपीसी की मीटिंग में ही कहा, बहुत बार लिखा है, ये इसमें लिखा है, आज के इसी में स्टेटमेंट में लिखा है। आपकी बात का जवाब इसी में हाँ, है। है। उन्होंने पूरा वो नहीं देखा। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से वाजपेयी जी का नाम इसमें आया है, इसका विरोध जो जेपीसी के दूसरे पार्टी के मेंबर भी हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी किसी के भी हैं, तो ये क्या है, सरकार के पराभव का एक शुरुआत है जेपीसी की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में पेश होगी तो सरकार की स्थिरता को लेकर रिपोर्ट तो पेश तब होगी जब पारित होगी। अब आपने बहुत पराभव शब्द जो कहा है, बहुत अच्छा कहा है, और शायद आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।